गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस की स्टडी करेंगे। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल। गैमीट्स का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस, दे विच इज हैप्लॉइड इन नंबर। Two different type of gametogenesis are present. First is spermatogenesis and second is oogenesis. Spermatogenesis is happened in the male body, male reproductive organs, and oogenesis occurred in the female reproductive organs. Spermatogenesis produce spermatozoa or sperm, and oogenesis produce ova or ovum. We study only the spermatogenesis in this lecture. In next lecture, we study oogenesis. What is spermatogenesis? The formation of a sperm in a male body is called as spermatogenesis. Male start producing sperm when they reach as puberty, which is usually from 10 to 16-year old. They are produced in large quantity. Amount is 200 millions a day to maximize the likelihood of sperm reaching the cell. Sperm production occurs in the seminiferous tubules of the testes. These seminiferous tubules kept separate from the systematic circulation by the blood-testis barrier. Process of spermatogenesis is divided into three phases. First is spermatocytogenesis, second is meiosis, third is spermiogenesis. In spermatocytogenesis, as the diagram indicates, the formation of primary spermatocyte or the formation of spermates are called as spermatocytogenesis. Second is meiosis. This is the maturation phase of the spermatocytogenesis. Third is spermiogenesis. Spermiogenesis is the process of metamorphosis from a round cells of the typically organelle to a highly specialized elongated cell, well adapted for traversing the male and female reproductive tract and reaching fertilization of an organ. Spermiogenesis is a process in which the oval sperm is transformed into a motile sperm. Spermatocytogenesis is again divided into three phases. First is multiplication phase, second is growth phase, and third is maturation phase. In the multiplication phase, the uh, the primary germ cells are divided mitotically. They are mitotically divided and form spermatogonia. और हम कह सकते हैं कि प्राइमोडियल मदर सेल्स और प्राइमरी जर्म सेल्स they are divide mitotically and form the spermatogonia. Growth phase. In the growth phase, this spermatogonia is become the primary spermatocytes. The volume of the spermatogonia becomes double in this growth phase. This spermatogonia goes into the growth phase and is called as primary spermatocyte. In the third phase, maturation phase, the primary spermatogonia is again divide meiotically. Meiotically is divided into two phases. First is first maturation division and second maturation division. In a first maturation division, this primary spermatocytes goes in the process of the meiosis and formation of the secondary spermatocytes. The difference between the primary spermatocytes and secondary spermatocytes, the primary spermatocytes are diploid in number and secondary spermatocytes are haploid. Again, this secondary spermatocytes divide meiotically or secondary maturation division take place, and this secondary spermatocytes change into the spermids. This complete the formation of spermids. The next phase of this
spermatogenesis is spermiogenesis. In this spermate is changed into the spermatozoa or sperm. ये मियोसिस की जो स्टेज है, ये डिवीजन की सेकेंड स्टेज मानी जाती है, जो कि मैचुरेशन फेज का ही रूप है। इस मियोसिस डिवीजन के अंदर जो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, फिर उनका रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्ड होते हैं और उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। दीज आर द डिफरेंट फेजेस happened same as in the meiosis cell division. This take place in the maturation phase. After that, the second stage of the spermatogenesis is spermiogenesis. The formation of spermate is changed into the spermatozoa or sperm. Spermate का ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म. दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस. इस स्पर्मियोजेनेसिस को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं. फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ हेड एंड सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ टेल. स्पर्मेट जो होता है वो राउंड इमोबाइल स्ट्रक्चर होती है, जो कि स्पर्मेटोजोआ जो है मोबाइल टेल लिए हुई स्ट्रक्चर होती है. दिस इज कॉल्ड एज स्पर्म. द राउंड स्पर्मेट इज चेंज इनटू अ टेल कंटेनिंग स्पर्म. दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजोआ. इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो हेड एंड टेल के फॉर्मेशन के लिए होते हैं. जैसे फर्स्ट इज, अगर हम हेड की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ, इसके साइटोप्लाज्म के और न्यूक्लियस के अंदर कुछ चेंज होते हैं, जिससे इसके टेल का और हेड का फॉर्मेशन होता है. तो हेड के फॉर्मेशन में जो चेंजेस होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं. पहला न्यूक्लियस के अंदर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर और एक्रोसोम के फॉर्मेशन में. फर्स्ट अगर हम स्टडी करते हैं व्हाट इज द चेंजेस ऑकर इन द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर सेप जो होता है वो एलिमिनेट होता है. राइबोन्यूक्लिक एसिड्स इज आल्सो एलिमिनेटेड. इसके अंदर ओनली हेरिडिटी मटेरियल जो कि क्रोमोसोम के अंदर होते हैं वही बचते हैं, और सारा साइटोप्लाज्म जो है या न्यूक्लियस जो है वो एलिमिनेट हो जाता है. न्यूक्लियस जो है वो उसके शेप में भी थोड़ा चेंज होता है. ये राउंड न्यूक्लियस जो है वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर के अंदर बदल जाता है. इसके बाद चेंजेस होते हैं इसके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर. गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी फेज जो कहलाता है, उसके अंदर एक्रोसोम का निर्माण होता है. एक्रोसोम का निर्माण इनके गोल्जी बॉडी के सिक्रीशन से होता है. अगर इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स. इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स से सिक्रीशन होता है जो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स का निर्माण करता है. ये एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स जो हैं ये प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल कहलाते हैं. ये प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स जब मिलते हैं तो ये बड़ा एक्रोसोमल या एक्रोसोमल वेसिकल्स का रूप ले लेते हैं, और पूरी न्यूक्लियस के ऊपर ये कैप की तरह इसके ऊपर सेट हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड एज कैप फेज. एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स fettered on the nucleus of the spermate. This is the acrosome situated at the apical end of the nucleus. ये जो डायग्राम दे रखा है इसके अंदर ये राउंड स्पर्मेट जो है उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक चेंजेस दे रखे हैं. ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स एपिकल एंड में चला जाता है और सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म है वो नीचे की तरफ, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नीचे की तरफ इसके अंदर सेटल हो जाता है. एक्रोसोम, इसके अंदर जो एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक्रोसोम एक लाइटिक एंजाइम होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के दौरान इसके अंदर ओवम में पेनिट्रेट होने के लिए हेल्प करता है. इट डिसॉल्व्स द लेयर ऑफ द ओवम. इसके अंदर हाइलोरिक एसिड्स प्रेजेंट होती है. हाइलोरेस एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि उस लेयर को डिसॉल्व करता है.
अगर हम फॉर्मेशन ऑफ टेल की बात करते हैं, जो कि सेकेंड पार्ट है, इसके अंदर सेंट्रियोल से टेल का फॉर्मेशन होता है। दो सेंट्रियोल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक कहलाता है डिस्टल सेंट्रियोल एंड दूसरा कहलाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। एक्चुअल फिलामेंट का जो फॉर्मेशन है या टेल का फॉर्मेशन है वो डिस्टल सेंट्रियोल से ही होता है। इसमें डिस्टल सेंट्रियोल्स इसके गैप में, इस राउंड स्पर्मिड्स के नीचे की तरफ यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, और इस डिप्रेशन के अंदर डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो एक्सियल माइक्रोफिलामेंट्स का निर्माण करता है, जिससे टेल का फॉर्मेशन होता है। इससे पहले यहाँ पे जितना भी साइटोप्लाज्म होता है स्पर्मिड्स का, जिसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया मेन होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है मिडिल पीस में आके सिचुएटेड होता है। दिस माइट्रोकॉन्ड्रिया फॉर्म द मिडिल पार्ट ऑफ दिस स्पर्म। इसके अंदर द शीट ऑफ दिस माइट्रोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज मेनचेस्ट। इस एक्सियल फिलामेंट की डिटेल स्टडी हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द बायोलॉजिकल चेंजेस इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंज होते हैं, जो कि हमने कुछ तो डिस्कस किए। अब इसके अंदर मेन जो इवेंट्स जो होते हैं बायोकेमिकल चेंजेस, दैट इज आरएनए सिंथेसाइज ड्यूरिंग द मियोसिस इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि आरएनए जो है वो ज्यादातर आरएनए जो है वो सेल से रिलीज कर दिया जाता है या एलिमिनेट कर दिया जाता है। केवल एक डिटेक्टेबल अमाउंट का फॉर्मेशन जो है वो आरएनए के अंदर बचता है, जो कि एक्रोसोमल प्रोटीन और फ्लैजिलम बनाने में हेल्प करता है। न्यूक्लियर प्रोटीन सिंथेसिस इज अरेस्टेड, रुक जाती है इन द मिडल ऑफ द स्पर्मियोजेनेसिस। All non-histone proteins in the nucleus are eliminated during spermiogenesis. All the synthetic events occurring during spermiogenesis are probably regulated by the stable RNA produced during the meiotic stages. Next, fifth is suppression of the genetic activity in the spermates and spermatozoa may depend on the regulatory mechanism which cause disappearance of the activating protein and RNA from the chromosome. हिस्टोन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल बायोकेमिकल चेंज इसके अंदर होता है। द हिस्टोन मॉलिक्यूल्स एसोसिएट विद डीएनए may play a protective role by stabilizing the DNA against changes occurring in the transport through the male and female reproductive tract. अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की कंट्रोल की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस दो चीजों कंट्रोल होता है, एनवायरमेंटली एंड फिजियोलॉजिकली। टेम्परेचर, लाइट, हार्मोन्स एंड फिजियोलॉजिकल स्टेज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जो कि हर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। अगर फिजियोलॉजिकली बात करें तो फिजियोलॉजिकली पिट्यूटरी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, जिसमें रेगुलेट करता है बाय सिक्रेटिंग ए सर्टेन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। अगर हम एनवायरमेंटली बात करें तो some vertebrates are affected by the temperature, light and the length of the day. इसके बाद हम आते हैं, हम अगली लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करेंगे एंड देन oogenesis. थैंक यू।